Good afternoon. We are meeting after a long time, and we have been talking about the history of Delhi. We started with the earliest cities of Delhi, and we have spoken about the Delhi of the Tomars. We have spoken about the Delhi of the Chauhans. We have spoken about how the Sheher or the old Delhi, the Qutb Delhi, was established by the Mamluks, by the slave dynasty. And today, very important part of Delhi, a very important city of Delhi, which was established by the Khiljis, is what we will be talking about. So, part of what we are doing today is what I have already spoken about जब हम ये पेपर की शुरुआत कर रहे थे, जब हम दिल्ली की जो 7 अलग-अलग शहर जो दिल्ली में बसाए गए by different rulers, when we were talking about those, we have already spoken about Siri. हमने सिरी के बारे में तब भी बात करी थी. आज हम थोड़ी जो बात है उसको थोड़ी ज्यादा बात करेंगे. We are going to maybe refresh what we already know, and revise what we already know, and talk a little bit more in greater detail about this city which was established by Alauddin Khilji towards the end of the 13th century. So the 13वीं शताब्दी है, उसके अंत तक आते आते this new city of Delhi is established, and the city is called Siri. उसका जो नाम है वो बदलता है, और भी ये जो कुछ पिक्चर्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, not all of them are say from the Siri. So for example, this is from Qutub complex, this is from Qutub complex, this is not a part of Siri. So ये जो image है, also if I show you certain other images like this, ये चोर मीनार की जो image है, ये आप जो है ये सिरी के अंदर इंक्लूडेड है. और हम चोर मीनार की बात करेंगे, और जो स्ट्रक्चर्स हैं जो सिरी के अंदर हैं या थे, जिनका कंस्ट्रक्शन हुआ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज स्ट्रक्चर्स एज वेल. So I'll come back to what we were discussing. So let us begin. Okay, so if there's any question, you guys may put up the questions in the Q&A section, and I'll try to attend your answer your questions by the end of the session. So today's thing is about Siri, the city which was established by Alauddin Khilji. It was the seat of power of this new dynasty which was established, a new dynasty which was the Khilji dynasty. And Alauddin Khilji is the person who built this city. This city was built between 1297 to 1307. 1297 से लेकर 1307 तक ये जो सिटी है, सिरी की जो सिटी है, इसको बनाया गया. अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था. क्यों बनाया था? क्योंकि मंगोल इन्वेजन्स हो रहे थे. जो मंगोल अटैक्स हैं वो हो रहे थे दिल्ली के ऊपर, और उसके बारे में हम थोड़ी सी और बात करेंगे अभी. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन अ लिटिल ग्रेटर डिटेल. But this city was established by Alauddin Khilji between 1297 to 1307 to defend the kingdom from the Mongol invaders. जो Mongol invasions हो रहे थे, उससे बचाने के लिए इसको यूज किया गया. Initially, this city was known as Lashkar, क्योंकि ये एक आर्मी कैंट था, एक आर्मी का एरिया था, तो इसको लश्कर या लश्करगाह भी कहा गया. So it was known as Lashkar or Lashkargah, which basically means an army camp. And if this was the Lashkar, if this was the Lashkargah, then what was the Sheher? The Sheher remained the old Delhi, the Mehroli wala Delhi. तो उस समय की अगर बात करें 13वीं शताब्दी की, 14वीं शताब्दी की, तो 14वीं शताब्दी की शुरुआत की, the beginning of the 14th century and the end of the 13th century and the beginning of the 14th century, this part of Delhi, the city part of Delhi, was known as the Lashkar or Lashkargah, and the Sheher still remained that old city of Kila Rai Pithoda and Qutb, and where there was Qutub Minar and the Jami Masjid. So that was the Sheher.
और ये जो एरिया है सिरी का, इसको शुरुआत में जिसको इट वाज बेसिकली अ वेस्ट लैंड। शुरुआत में तो बिल्कुल ही वेस्ट लैंड था। और उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्मी यहाँ पर रही, तो उसके बाद उसका नाम लश्कर या लश्करगाह पड़ गया। और उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी इस एरिया को में रहने लगते हैं, यहाँ पर अपना पैलेस बना लेते हैं, दैट इज द टाइम wherein the city came to be known as दारुल खिलाफत। दारुल खिलाफत जो नाम है इसका, which basically means the seat of the caliph. Caliph is the head of caliph is a term which is used for the head of the Muslim tribe or Muslim entire Muslim population. तो ये जो नाम है इस शहर का वो हो गया दारुल खिलाफत, मतलब द सीट ऑफ द कैलिफ, वेयर द कैलिफ लिव्ड। तो ये जो सिरी थी, ये धीरे धीरे एक वेस्ट लैंड से लश्कर यानी मिलिट्री कैंप, और एक मिलिट्री कैंप से एक कैपिटल सिटी बन गई विद इन द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम बात करें आज का जो टाइम है, आज के टाइम के दिल्ली के कौन कौन से जो एरियाज हैं वो सिरी के अंदर इंक्लूडेड होंगे, तो जो शाहपुर जट, दिल्ली में साउथ दिल्ली में एक विलेज है, शाहपुर जट का जो एरिया है वो इसमें आएगा। हौस खास का जो एरिया है वो इसमें आएगा, हौस खास विलेज। इसी के साथ साथ जो ग्रीन पार्क का साउथ दिल्ली में एरिया है वो भी सिरी का ही पार्ट था। जहां आपका श्री फोर्ट ऑडिटोरियम है, तो श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, श्री फोर्ट का जो एरिया है, वो सारा जो एरिया है वो इस कैपिटल सिटी में था जिसका नाम था सिरी। जो this, though Siri is becoming an important city during the time of Alauddin Khilji, but as we have discussed earlier, the old शहर, जो शहर था, जो मेहरोली वाला जो शहर था, जो कुतुब मीनार के आसपास को जो शहर था, जिसको किला राय पिथौरा भी कहा गया, that area remained important. There were important economic activities. There were important, as a, the as a people would meet for commercial activities, etc. So the sheher was able to retain its importance, even though Siri was, set up. Siri was founded. This new city of Siri was founded by अलाउद्दीन खिलजी। तो जो वो मेहरोली का जो क्षेत्र है, जो शहर के नाम से था, वो भी उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बनी रही। ये जो नाम है सिरी, ये कहाँ से आता है? जो उर्दू का जो शायद जो लफ्ज है सिर या सर, वहां से आता है। बहुत सारे जो मंगोल हैं उनको डिफीट किया गया। सो देयर इज अ रूमर कि वो जो ये जो सिटी के फाउंडेशंस हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने जो इस सिटी को के जो फाउंडेशंस हैं, जहाँ पे इस सिटी की दीवारें बनाई गई, वहां पर 8,000 मंगोल इन्वेडर्स के सर काट के डाले गए वहां पर। सो दे आर ऑल देयर। और जो सिरी की जो दीवारें हैं, जो कि बहुत जिनकी विड्थ बहुत ज्यादा थी, बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें थी सिरी के जो फोर्ट बनाया गया उसकी। सो ऐसा कहा गया कि जो मंगोल इन्वेडर्स हैं उनके सर इसमें डाले गए, तभी इसका नाम जो है सिरी। सो वी डू नॉट नो the real there is no historical evidence behind this, but that is one of the things which is said. um, Sir Syed Ahmad Khan, who is, was very important, socio-religious reformer of within the Muslim community of the 19th century. He's very important. There's entire Aligarh movement. His role is very, very important there. So, वो एक किताब को कोट करते हैं जिसका नाम है खुलासत उत तवारीख। खुलासत उत तवारीख में, जो कि एक इंडो पर्शियन टेक्स्ट है, उसके अंदर एक क्रॉनिकल था, जो सुजन राय ने लिखा, जिसमें सिरी सिटी की बात की गई कि इसकी जो लोकेशन है कि सिरी सिटी है कहाँ पर, उसके बारे में बात की गई। एंड उस समय ये कहा गया कि जो सिरी सिटी है ये किला राय पिथौरा यानी जो शहर है, और किलोखरी
Kilokeri is the other city which was built near the सबब, जो घियासपुर के पास एक और सिटी जो बनाई गई थी जिसका नाम नया शहर रखा गया था। तो जो शहर है वो मेहरौली का क्षेत्र शहर हो गया और किलोखरी जो था वो नया शहर हो गया। तो शहर और नए शहर के बीच में सिरी को बसाया गया। दिस कैपिटल ऑफ सिरी वाज सेट अप बिटवीन द शहर एंड बिटवीन द नया शहर, जो किलोखरी का जो एरिया है। एक और बात जो हमने की है, बट टू अगेन मेंशन इट एंड टू अगेन बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, इज दैट द फोर्ट ऑफ सिरी वाज सर्कुलर इन शेप। वो सर्कुलर था। उसकी जो वॉल्स थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उनको स्टोन से और ब्रिक्स से बनाया गया और रूबल स्टोन से बनाया गया, जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। इरेगुलर शेप के जो स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनसे इसकी वॉल्स को बनाया गया। और इसके 7 गेट थे, एज तैमूर हैज नोटेड। तैमूर जो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे, तैमूर ने नोट किया अपने मेमोइर्स में दैट ये जो कैपिटल सिटी थी सिरी की, इसके 7 गेट थे, बट ओनली वन ऑफ देम विच इज द बगदाद गेट जो है वो मेंशन किया गया, जो कि सिरी के वेस्टर्न साइड पे था। जो इस फोर्ट की, सिरी के फोर्ट की जो वॉल्स हैं, जो मैंने बताया कि बहुत चौड़ी चौड़ी जो थी, बहुत ज्यादा विड्थ में बहुत बड़ी थी इनकी, सिरी की जो वॉल्स थी। इसके बारे में इब्न बतूता, अ ट्रैवलर, अ मोरक्कन ट्रैवलर हु कम्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ट्रैवलर आते हैं। इब्न बतूता वर्ल्ड की बहुत सारी सिटीज में ट्रैवल करके वो दिल्ली तक पहुंचे हैं, और जब दिल्ली तक पहुंचते हैं, he is made the Qazi of Delhi by Muhammad bin Tughlaq. Ibn Battuta wrote his book known as Rihla. इब्न बतूता ने किताब लिखी जिसका नाम था रिहला। और इब्न बतूता इस बात को बताते हैं कि ये जो सिटी, सिरी की जो सिटी थी, इसकी जो वॉल्स थी वो 17 फुट थी थिकनेस में। दे वर सो थिक दैट दे वर ऑलमोस्ट 17 फीट इन थिकनेस। बट अब जो है बहुत ज्यादा रिमेन्स नहीं मिलते हैं। अब तो बस अगर हम इस एरिया में जाएं और यहाँ की आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो भी हैं उसको स्टडी करने की कोशिश करें, तो ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। एक सेक्शन है इस फोर्ट वॉल का जो शाहपुर जट के पास का जो रीजन है वहां पर देखने को मिलता है। बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे सिरी जो कैपिटल बनाया गया था उसमें। और ये सब जो है स्प्रेड आउट हैं, क्योंकि काफी बड़ा क्षेत्र है। शाहपुर जट से लेकर ग्रीन पार्क, श्री फोर्ट, हौस खास, जो पूरा ये जो एरिया है, all of this is included in it. And so but very little of the archaeological remains, very little of these monuments remains there till now. So this was constructed by Alauddin Khilji, or 1297 से इसको एज अ कैपिटल यूज किया गया। कब तक यूज किया गया? 1321 तक। 1321 तक जो था ये एज अ कैपिटल रही दिल्ली की। दिल्ली का जो ये एरिया है, ये कैपिटल, एज अ कैपिटल इसने सर्व किया। और उसके बाद जो है एक नया शहर जो घियासुद्दीन तुगलक बनाते हैं, विच इज द तुगलकाबाद, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तुगलकाबाद के बारे में। So and then by after 1321 the capital is moved to Tughlakabad. So and also wherein there was this ruler who came to Delhi, and he set up the new capital. The ruler was known as शेर शाह। शेर शाह के बारे में हमने अपनी पिछली क्लासेस में बात करी है। तो जब शेर शाह अपनी सिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उन्हें पुराना किला के आसपास जो सिटी बना रहे थे, उस समय जो था वो सिरी के से बहुत ज्यादा जो बिल्डिंग मटेरियल है उसको, सिरी को डिस्ट्रॉय करके बिल्डिंग मटेरियल को यूज किया गया, रिसाइकल करके शेरशाह जो कैपिटल बना रहे थे उसमें उसको यूज किया गया। So this is about the a brief introduction about the city of Siri, which was was founded by Alauddin Khilji. और Alauddin Khilji जो है, as I said that why is he why did he set up this new capital while there was already an important region within Delhi, and that was the region of शहर। जो शहर का जो एरिया था वो ऑलरेडी वहां पर था,
और तो इस अलग शहर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मंगोल जो ट्राइब्स हैं वो अटैक कर रही थी, and they were, they had reached almost till the regions of Ganga. They were attacking the upper Gangetic plains, and they were attacking Delhi, and that is why this new capital is being established. I see that some of you have raised questions. um, Okay, Bache, please try to take the notes of from when when we are, when I'm giving you the details कि इससे इस टाइम में बनाई गई और इसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी और ये रीजंस थे, ये आपको क्लास के साथ साथ नोट्स लिखने हैं। आपका एसयूएल का मटेरियल भी है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं मैं आपको वो भी बता दूंगा, ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, आप इनसे और अगर पढ़ना चाहे तो ये सोर्सेज से आप पढ़ सकते हैं। But you will have to take the notes from the classes only. I'm not going to give you ready-made notes because I don't have, frankly. So आपको जो क्लास में लेक्चर दिया जा रहा है उसी से आपको नोट्स जो है वो बनाने हैं। Now, why was this capital established? I was talking about that why was the capital city of Siri established, founded by Alauddin Khilji? तो इस समय पर मंगोल जो ट्राइब्स थी वो दिल्ली पे अटैक कर रही थी, एंड स्पेशली द उगतई एंड द चगतई टर्क्स जो थे, द उगतई एंड द चगतई ट्राइब्स, डिसेंडेंट्स ऑफ द चिंगिस खान, they were attacking various areas of Central Asia, and and the leader was Kedu. कैदू के अंडर ये दोनों जो ट्राइब्स के जो लोग थे ये अटैक कर रहे थे, और इनके अटैक्स में बहुत ज्यादा जो था, द इंटेंसिटी ऑफ द अटैक्स, the frequency of the attacks increased under Kedu, and this is what increased the Mongol raids in India as well. And Delhi became a target of all these Mongol attacks, and twice it is attacked by these Mongols who are Mongols which are attacking different areas of Central Asia. Twice Delhi is also being attacked. Thus, it became necessary for the population of the capital of this capital जो region है जो दिल्ली का, उसकी population को safe रखने के लिए it became absolutely necessary that they should be kept under some kind of a fortified structure. There should be fortified walls which can keep the people of Delhi safe. This meant that जो vicinity के जो rocky area था, जहाँ से stone की बहुत ज़्यादा supply हो सकती थी, जहाँ से stone was easier, must continue to be the capital. So Delhi should be the capital because it was in the Aravalli ranges, and there was an easier supply of stone, and those who wanted to lay the foundations of a new capital, Delhi was in that sense had an advantageous position because stone was available for constructing the forts. Now there is a medieval historian, his name is Barani. Barani is saying about Delhi, and I quote, he says that so Barani says that the terror of the Mongols became all-pervasive. Mughal horsemen began to come up to the platform of Subhani, Chabutarai Subhani, and the villages of Mori and Hadi, and the banks of the Hauze Sultani or Hauze Shamsi. And after the disaster of the Targhiz invasion, which was a great disaster, Sultan Alauddin woke up from his sleep of negligence and gave up the projects of taking away the army on campaigns and reducing forts in India. He now built his palace, Koshak, in Siri and began to reside in Siri. He designated Siri as his capital, Darul Khalifa, and made it well populated. He also built up the fort of the old Delhi. Now, this is what Barani is saying कि जब Mongols invasions जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दिल्ली के अंदर अटैक होने लगा, यहाँ तक कि जो दिल्ली के आसपास के जो villages हैं वहाँ तक अटैक होने लगा, और जो शमसी तालाब है जो अब जो कुतुब मीनार के पास है, वहां तक मेहरोली में है शमसी तालाब, वहां तक अटैक होने लगा. So this is the time
This is the time when Baruni says that Alauddin Khilji woke up from his slumber, and instead of waging wars and taking his army on different campaigns and destructing the forts of India, this is the time when Alauddin Khilji starts constructing a fort. Now, Siri was a plain area, it was a waste ground, as I've told you, even while I was giving you the introduction, I told you that Siri was a plain ground. It was a wasteland. वहां पे कुछ ज्यादा ना आबादी थी ना खेती थी, कुछ भी नहीं था, तो वेस्ट ग्राउंड था. और पुरानी दिल्ली जो जो अभी भी अगर हम देखें तो जो शाहपुर जट का जो रीजन है, जो हौस खास का रीजन है, ये मेहरौली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है. सो इट वाज, अगर उसके इट वाज एडजॉइनिंग ओल्ड दिल्ली, आल्सो ओल्ड दिल्ली ऑफ दैट टाइम, दैट इज द शहर रीजन. एंड अलाउद्दीन की जो आर्मी है, उन्होंने उस वॉल्ड दिल्ली में उस 1296 में जो किला राय पिथौरा मेहरौली वाली जो दिल्ली है, उसमें एंटर करने से पहले अब जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, उनकी आर्मी जो है वो यहाँ पर रुकी थी. इट वाज स्टेशन्ड हियर, एंड ही हैड he had come out of the world capital. तो ये जो वर्ल्ड कैपिटल थी मेहरौली के आसपास की, वहां उसके बाहर अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्मी थी इस एरिया में रुकी थी. एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज लश्कर और लश्करगाह. And Alauddin Khilji, pitched his tent on the plains when there was this Mughal commander who tried to attack the capital of Delhi. This was the region which was used by Alauddin Khilji to protect himself. At the beginning, this settlement at Siri was called Lashkargah because of what the reasons I've just told you, that it was a place which was used to where the Alauddin Khilji's army rested. So it was known as Lashkar or Lashkargah, which is the area where the army rests, as compared to the region of Qutb Delhi, which was known as Sheher. And this Lashkar or Lashkargah, or this new capital, was between the Sheher and the Naya Sheher. So it was between the Qutb Delhi and the Kilokari. Nizamuddin, is also commenting upon the distance between कि जो शहर है और शहर से लश्कर का जो एरिया है वो कितना दूर है, इसके बारे में निजामुद्दीन भी जो है वो कमेंट करते हैं. और उनके जो एक डिसाइपल थे, जो कि एक आर्मी में खुद एक कमांडर भी थे, जिनका नाम अमीर हसन सिजजी था, वो इसके बारे में लिखते हैं. Amir Hassan Sijzi was a disciple of Sheikh Nizamuddin, and Nizamuddin in his comments is talking about how distant is this region of Lashkar from the old Delhi. And as I said, that Amir Hassan Sijzi was himself an army officer. He had built his house in this Lashkar. तो उन्होंने भी अपना घर जो है वो इसी लश्कर में बनाया था. तो ये जो है, ये एक आर्मी ऑफिसर भी हैं, सिजजी जो है एक आर्मी ऑफिसर भी हैं, और निजामुद्दीन के एक डिसाइपल भी हैं. So and this enabled सिज्जी की जो है वो अपनी जो नमाज है वो किलोखरी में जाके पढ़ सकें. और सब्सिक्वेंटली ये जो लश्कर गाह था, ये जो लश्कर था, इसको बदल के इसका नाम जो है वो आर्मी से बदल के पूरी कैपिटल ही इसको बना दिया गया, और इसका नाम जो है वो दारुल खलीफा पड़ गया, एज इट इज रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ इब्न बतूता. तो इब्न बतूता की के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें इसको दारुल खलीफा जो है, इस एरिया को दारुल खलीफा कहा गया. Now, as far as the local memory is concerned, जो सिरी है वो उसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो जो इंडिया के जो पहले डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, he also identified this vast area which is raised by mounds of earth and containing the village of Shahpur Jat. And the identification is now held to be distinctive, definitive, and it says that this is the area which would have been Siri. And it meets all the requirements of the indigenous position of Siri in whatever sources which we have recovered of the medieval sources.
this area is definitely the area of this capital of Alauddin Khilji. Now, how big is this area? The area is not very big. It is just 1.7 square kilometers. So जो पूरा area है वो लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम का एरिया है. एंड इस एरिया के बारे में एक और जो डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है वो एक और मिडिवल हिस्टोरियन थे जिनका नाम था यजदी. तो यजदी के बारे में भी हमने पहले बात करी है. एंड द टेक्स्ट व्हिच वाज रिटन बाय यजदी वाज जफरनामा. तो जफरनामा में वो बोलते हैं कि दैट द वॉल्ड एनक्लोजर सुरा of Siri is roughly circular, and it was in contrast to the other rectangular cities of Delhi. तो जो उससे पहले की जो दिल्ली में अलग अलग शहर बसे थे वो रेक्टेंगुलर थे शेप में, और ये जो इसका जो सुरा था, जो सिरी का जो सुरा था, वो यजदी बोलते हैं कि ये सर्कुलर थी अपने स्ट्रक्चर में. Now, Alauddin Khilji's attention, however, seems to have been mostly towards the, centered towards the Qutub Delhi. There were vast extensions which he made to the Friday Mosque of which was still located in Qutb Delhi. तो बेशक एक नई सिटी जो है, एक नया शहर जो है उसको बसा दिया गया, but in no way did this take away the importance of old Delhi, the Mehruli Delhi, जिसको शहर कहा गया, उसकी इंपॉर्टेंस किसी भी तरीके से कम नहीं हुई. that area continued to generate a lot of interest. It was important commercial center, and also there is an enormous increase in population. जो population है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, and जो this and it is even recorded that जो शहर है दैट इज एन एरिया पार एक्सीलेंस. वो पार एक्सीलेंस एक एरिया है, एंड इट इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द दारुल खलीफा एंड द शहर ए नऊ. तो जो शहर है उसकी इंपॉर्टेंस अभी भी उतनी ही बनी हुई है, उससे ज्यादा ही बन गई, उसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एंड इट वाज डेफिनेटली एन एरिया व्हिच वाज मोर इंपॉर्टेंट देन द न्यू शहर किलोकरी का जो रीजन है, एंड ऑल्सो द रीजन ऑफ सिरी. दोनों ही जगह से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी भी जो एरिया था वो शहर का कुतुब दिल्ली का एरिया था. नाउ अलाउद्दीन decreed that the cloth market should be established on the open ground Sohra within the Badayu gate in the direction of the Koshake subs, and for years it remained unoccupied. तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ये जो नई जो सुराह है उसका जो ओपन ग्राउंड है, जो बदायूं गेट जो हमने बताया था कि अभी एक एक ही गेट है जो वेस्टर्न साइड का गेट है, वही इंपॉर्टेंट गेट है जो बचा हुआ है. तो कहा कि जो क्लॉथ मार्केट है उसको वहां पर मूव कर दिया जाए, बट वो एरिया जो था वो अनऑक्यूपाइड ही रहा, वहां पे ज्यादा कुछ भी नहीं हो पाया. If we talk about the important structures within this city, so yes, there was definitely okay, just before that, the grain market, which I've also said in one of the previous classes, जो grain market थी, जो अनाज की जो मंडी थी, वो अभी भी बर्नी हमें बताते हैं कि वो जो grain market थी वो अभी भी शहर के अंदर ही थी. तो शहर, just to give you an idea that the शहर or the Qutub Delhi remained important despite all these despite Siri being coming up as the capital, as the Darul Khalifa जो है वो establish हो गया है, Siri जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का रेजिडेंस है, बट still शहर remained important. It remained very, very important commercially. Its population was growing, etc. Now there was a problem of water which was there in this region, because जो region है ये rocky region है, and it doesn't have really a lot of water sources, and there were dry wells outside the Badaयूं gate, and which tells us that the water, the scarcity of water would have been a problem to this city which was growing in size, and the problem would have become acute because there is a population growth, and also there is a decline in the resources, decline in the sources of water. And Alauddin Khilji tried to solve this problem by, first of all, by re-excavating the already
that the lake which was already constructed, which was constructed during the time of Iltutmish, जिसका नाम हौज़े सुल्तानी था, हौज़े सुल्तानी या शमसी, हौज़े शमसी जो है, जो इल्तुतमिश के टाइम पे बनी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले इनको दोबारा से एक्सकवेट करने की कोशिश की, और जो टैंक है इसका वो बिल्कुल ही it had dried up, and there was large amount of mud and silt which was removed from this tank, and इसके आसपास जो है एक चबूतरा बनवाया गया, एक गुंबद बनवाया गया by अलाउद्दीन खिलजी। But Amir Khusro, a very important medieval poet, he tells us जो कि वो जो वो बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेशन के साथ हमें बताते हैं कि जो पूरी नाइल की जो नदी है, और यूफ्रेट्स नाइल जो इजिप्ट में है, और यूफ्रेट्स नदी जो मेसोपोटामिया में इराक के रीजन में है, वो उन पूरी नदियों का भी जो पानी है वो जो कुतुब दिल्ली है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं होता। So the population, Amir Khusro says that the population of the Sheher or Qutb Delhi was so much that even the water of the Niles and Euphrates would have been insufficient in meeting the demands of the people of Qutb Delhi. And this is the time, apart from re-excavating and doing, setting up this kind of excavation work of this Hauze Shamsi and Hauze Sultani, Alauddin Khilji also begins a construction of this new man-made new reservoir, which is known as the Hauze Ilai या Hauze Khas। तो ये जो है ये हौस खास लेक है। Those of you who have been to the हौस खास region, जो हौस खास village के पीछे जो एक लेक है, the reservoir which is there, it is the same lake that we are talking about। और हौस खास के पास एक डियर पार्क है, तो उसके अंदर से ही उसकी एंट्री है, दूसरी तरफ से आर के पुरम की साइड से भी उसकी एंट्री है। So this lake, this reservoir was constructed by Alauddin Khilji. It was also, later it was repaired and desilted by Firoz Shah Tughlaq। उन्होंने भी उसको दोबारा से उसको rework किया, उसको repair करवाया बाद में। But ये जो हौज़े शम्सी, हौज़े खास का जो रीजन है, हौज़े इलाई का जो रिजर्वायर है, ये पुरानी जो दिल्ली थी, जो कुतुब दिल्ली थी, उसके नॉर्थ साइड में पड़ता था। एंड दिस was this tank was constructed by Alauddin Khilji, and it is still it is still there। You guys can go and see it probably after corona is over। आप लोग जाके देख सकते हैं। ये हौस खास का जो रीजन है वहां पर है हौज़े इलाई, और बहुत बड़ा जो है ये टैंक है। एंड जो यज़दी थे जो मिडिवल हिस्टोरियन, वो इसको कहते हैं कि it was so big that Yazdi almost calls it as a दरिया चाह। वो इसको स्मॉल सी, दरिया चाह मतलब दरिया के जैसा, सो छोटा सा दरिया। तो उसकी जो बराबरी है वो समुद्र से, सी से करते हैं। सो रेनी सीजन में जो है ये पूरा भर जाता था, और जो the water of this reservoir was used to meet the requirements of people who were living at that time। And it was Firoz Shah Tughlaq, he says that how जब तक फिरोज शाह तुगलक पावर में आते हैं, वो कहते हैं कि कैसे जो पूरा जो रिजर्वायर है इट हैज ड्राइड अप, और उसमें वेल्स खुदे हुए हैं जहां से लोग जो है वो पानी निकाल के बेचते हैं। तो इस तरीके की भी बात फिरोज शाह तुगलक कहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि मैंने कैसे ये जो पूरा है रिजर्वायर जो टैंक है इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करवाया। एंड so this was this is one of the important things which Alauddin Khilji constructs in this region। Another important structure was the Chor Minar। जो चोर मीनार का जो रीजन है, चोर मीनार जिसकी मैंने भी इमेज दिखाई थी क्लास के बिगिनिंग में। आई ट्राई टू शो यू द इमेज वंस अगेन। ये जो स्ट्रक्चर है, आई बिलीव आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चोर मीनार का जो स्ट्रक्चर है। Now this structure was again constructed during the time period of Alauddin Khilji, and it is said कि ये जो structure है ये यहाँ पर first of all where is it, तो ये जो हौस खास का जो region है वहां पर है ये।
और दिखने में एक मीनार की तरह लगता है। और so this structure was also built by Alauddin Khilji, and it is, why is it called as Shor Minar? It is said that 225 लोगों का जो है सर जो है, जो चोर होते थे उस टाइम पे, उनका जो सर है वो काट के यहाँ से एग्जिबिट किया जाता था। इट वाज एग्जिबिटेड टू द जनरल पब्लिक that those people who are going to engage in those people who are thieves, it was basically a performance of punishment which was done। इस मीनार के ऊपर से जो चोर होते थे उनका सर काट के दिखाया जाता था। So it would have been a very terrifying thing, but we don't really know how true it is। however, कोई जो रेफरेंस है इसके आसपास वो नहीं मिलता है वो हमें कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरीके का जो है वो उन्होंने करवाया। बट Sultan Alauddin Khilji, came to the throne of Delhi Sultanate at the time wherein, as I told you, कि जो मंगोल इन्वेजन है, मंगोल जो थ्रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और उनके पास ह्यूज आर्मी थी। और 10 उस समय पर उन्होंने जो पूरा सिस्टम जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया दिल्ली में रेशनिंग का, दिल्ली में जो मंडी का, और उसमें बिल्कुल कोई जगह, कोई स्कोप नहीं उन्होंने छोड़ा। इतने सारे स्पाइस जो थे, उन्होंने पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया जो पूरे स्पाइस देखेंगे कि क्या कोई चीज गलत तो नहीं कर रहा है कोई। तो उसके लिए, चीटिंग के लिए, डिसीट के लिए, धोखाधड़ी के लिए देयर वाज एब्सोल्युटली नो स्कोप, एंड ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन गिविंग पनिशमेंट। और ये जो मीनार है, जो चोर मीनार है, वही रूबल मेसनरी का बना हुआ है, रूबल स्टोन का बना हुआ है, जो कि एक रफ स्टोन है और उनको एक मोर्टर से, एक पेस्ट से साथ में जोड़ के बनाया गया। इसका जो सेंटर है प्लेटफॉर्म का वो 30 स्क्वायर फीट है और ये 7 फीट टॉल है। और 4 साइड हैं इसके, जो प्लेटफॉर्म है उसकी 4 साइड्स हैं जिसपे प्लेटफॉर्म पे ये खड़ा हुआ है। सो देयर आर 4 साइड्स टू इट। और आप देख रहे हैं कि उसमें कैसे आर्चेस दिख रहे होंगे आपको कि उसमें आर्च हैं, वो जो नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर है। एंड okay, so this is another important structure which was constructed during the time of Alauddin Khilji, as also जो हौज़ इलाही या हौज़ खास हमने बात की वो भी उन्होंने बनवाया। और ये भी चोर मीनार का जो स्ट्रक्चर है ये भी उन्हीं के टाइम पीरियड का बना हुआ है। एंड दिस सिटी, I'll just stop the screen share. Okay, so these are the important structures which we can still find। तो बहुत सारे जो structures हैं वो अब नहीं मिलते हैं हमें। इसके दो हमें बहुत ज्यादा references मिलते हैं। यज़दी का जो अकाउंट है, बरनी का जो अकाउंट है, इब्न बतूता का जो अकाउंट है, उसमें हमें बहुत ज्यादा रेफरेंसेस मिलते हैं कि यहाँ पर कैसे जो है कंस्ट्रक्शन किया गया बाय अलाउद्दीन खिलजी। और उनका जो पैलेस है वो भी यहाँ पर बनवाया गया, सिरी के बाहर बनवाया गया। एंड लेटर आफ्टर द सिरी, जो नेक्स्ट कैपिटल होगी वो तुगलकाबाद की जो कैपिटल होगी, जो घियासुद्दीन तुगलक जो है वो बनवाएंगे। और उसके बाद जो है वो जहापना का जो कंस्ट्रक्शन है, जहापना की भी हमने बात की है पहले। और जिसके बारे में इब्न बतूता बताते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उनका एम्बिशन था कि जो पूरा जो एरिया है उसको, जिसमें कि ओल्ड दिल्ली मतलब शहर, जो कुतुब दिल्ली है, तुगलकाबाद है, किलोखरी है और सिरी है, इस पूरे जो रीजन है उसको एक बाउंड्री वॉल में, एक वॉल्ड स्ट्रक्चर के अंदर उसको ले लिया जाए। एंड दैट वाज व्हाट मोहम्मद बिन तुगलक maybe aspired to do, but Ibn Battuta says that maybe the cost was coming too high, and that is why this plan was abandoned and it was not taken to fruition. um, okay, so this is about Siri. Now, if there's if there's any question that you want to ask about Siri, I can answer it. Please share your questions in the Q&A section. Otherwise, I'll just briefly, conclude towards the end. तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है सिरी के ऊपर, कोई एक पर्टिकुलर हिस्टोरियन जो है आपको नहीं समझ में आया है, या जिसने मिडिवल हिस्टोरियन ने जिसके बारे में बात की गई हो वो नहीं समझ में आया, so anything that you haven't understood you can ask in the Q&A section, and I'll try to answer it.
बच्चे सिरी का जो फोर्ट है वो काफी बड़ा फोर्ट था, तो अब उसकी जो इट इज फ्रॉम द मिडीवल अकाउंट्स इट इज सेड दैट द फोर्ट वाज वेरी वेरी बिग, बट नॉट मेनी रिमेन्स ऑफ दिस फोर्ट आर स्टिल टू बी फाउंड। तो बहुत ज्यादा जो है हमें रिमेन्स अभी तक नहीं मिलते हैं इसके सिरी के। कुछ कुछ जो है फोर्ट वॉल के कुछ कुछ हमें स्ट्रक्चर्स जो हैं वो शाहपुर जाट के पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां पे देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो लेटर स्ट्रक्चर्स हैं, जो लोधी टाइम पीरियड के स्ट्रक्चर हैं, जो तुगलक टाइम पीरियड के स्ट्रक्चर हैं, वो इसी सिरी के रीजन में देखने को मिलते हैं। सो मतलब even though the Lodhis, they would set up a different city, वो अलग एरिया में जाकर वो अपने स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, बट ये जो सिरी का जो रीजन है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जो बाद की डायनेस्टीज आएंगी वो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाती रहेंगी, जैसे कि जो दादी पोती गुम्बद है, हौस खास विलेज के पास में एक गुम्बद है जिसका नाम है दादी पोती गुम्बद। सो द दादी विच इज आल्सो नोन एज द बेगम एंड द बंदी गुम्बद। सो जो बड़ा वाला जो गुम्बद है वो बेगम गुम्बद या दादी गुम्बद है, और जो छोटा वाला है उसी के पास में एक छोटा स्ट्रक्चर है जिसको जो है बंदी या पोती गुम्बद कहा जाता है। सो this structure is not the structure which was built during the time of the खिलजीज। ये जो स्ट्रक्चर है बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में कंस्ट्रक्ट होता है, ये खिलजीज के टाइम का नहीं है। सो जो खिलजीज के टाइम पे जो सिरी का रीजन बनाया गया, जो सिरी को कैपिटल बनाया गया, उसमें बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लेटर एडिशंस हैं। कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि हौजे इलाई या हौस खास जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का है। और उसके अलावा जो चोर मीनार है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का है। उसमें देयर आर 225 होल्स। अभी जो मैंने इमेज दिखा रहा था उसमें 225 होल्स हैं उस मीनार में। और सो कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के ही हैं, और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं इस पूरे रीजन में। सिरी, सिरी फोर्ट, ग्रीन पार्क, हौस खास का जो रीजन है, जो बाद के जो डायनेस्टीज रही, जैसे लोधी डायनेस्टी जो रही, जो तुगलक डायनेस्टी रही, उनके जो अलग अलग रूलर्स रहे, उन्होंने वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करी। जैसे कि इवन व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द हौजे इलाई, तो उसके बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो इवन दैट रिजर्वॉयर, दैट टैंक इज बीइंग रिपेयर्ड बाय फिरोज शाह। तो ऐसा नहीं है कि जैसे बिल्कुल ही अबैंडन हो गया कि अलाउद्दीन खिलजी का रूल खत्म हुआ तो उसके बाद बिल्कुल अबैंडन कर दिया गया, वहां पे कोई नई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई ही नहीं। इट इज नॉट द केस। देयर वर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। जैसे अलाउद्दीन खिलजी भी जो है वो शहर में, जो ओल्ड दिल्ली है, जो शहर है, वहां पर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। ही इज extending and he is making the mosque there. He is enlarging the mosque there. तो वो ऐसा नहीं कि सिरी जो है उसको कैपिटल बनवा लिया तो वहां पर सिर्फ वहीं पे जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कराएंगे, और पुरानी जो दिल्ली है, जो कुतुब दिल्ली है, वहां पर कुछ नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी भी अपने टाइम पे दो उन्होंने सिरी जो है उसको एज अ कैपिटल बना लिया है, बट एट द सेम टाइम ही इज स्टिल मेकिंग extensions to the mosque which was there in कुतुब दिल्ली। तो कुतुब दिल्ली का जो मॉस्क है वहां पर उसको बढ़ा रहे हैं। सो सिमिलरली जो बाद के जो लेटर रूलर्स में आएंगे वो अपनी अलग अलग जो है वो कैपिटल सिटीज दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश, लाइक फिरोज शाह तुगलक, ही आल्सो, जो फिरोज शाह कोटला का जो एरिया है, जो जो दिल्ली गेट, मौलाना आजाद जो मेडिकल कॉलेज है उसके सामने आईटीयू के पास का, उन्होंने वो अलग एक सिटी बनाते हैं फिरोजाबाद। And that you know even though that is the capital there, but there are still structures of his time which can be found in this in the region of Siri and in various parts of South Delhi, which are far far away from where he was, the area where he was ruling. If there's any other question, please ask. If you haven't understood, अगर कुछ notes में कोई नाम नहीं लिख पाए हैं, कोई year नहीं लिख पाए हैं, तो you can ask. I tried to share the images, बच्चे, मैंने image दिखाने की कोशिश करी थी। I showed you जो 3 foot का जो जितने भी wall का जो हमें part अभी मिला है
वो मैंने दिखाने की कोशिश करी थी। उसके अलावा जो चोर मीनार है, जो हौस खास की जो लेक है, जो रिजर्वॉयर है, जस्ट गूगल इट। मतलब अगर आपको यहाँ पर मतलब मान लीजिए आपकी डिवाइस में नहीं दिख पा रहा है, तो सिर्फ ये नाम डाल के आप गूगल करेंगे और इमेजेस में जाएंगे, यू विल बी एबल टू सी दिस ह्यूज टैंक, जो रिजर्वॉयर है, जो टैंक है हौस खास का, वो आप देख सकते हैं गूगल पे। या फिर जो चोर मीनार है, यू कैन लुक एट दैट इमेज, यू कैन लुक इट अप देयर। यस, सिरी इज नाउ इन साउथ दिल्ली। ये जो मैंने बताया कि जो क्लास में जो सारे रीजन्स थे, ये जो अभी के जो दिल्ली के जो ये सारे रीजन हैं, ग्रीन पार्क का, हौस खास विलेज, शाहपुर जट, जो श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, ये जो पूरा जो एरिया है, और शाहपुर जट के पीछे एक ग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब सिटी फॉरेस्ट, जो पूरा एक फॉरेस्टेड रीजन है, जो कि पार्क का रीजन भी है। और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो जिस यहाँ पे शाहपुर जट के जो लोग हैं उनको एज अपनी कैटल बांधने के लिए, एज फॉडर, जो उनकी कैटल है उसके लिए यूज करते हैं। बट और ये स्ट्रक्चर्स बोथ खिलजीज के टाइम के हैं, लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं। And a very important book which you must look up, not just for this the topics that we have done today, but even otherwise, is the book by Rana Safvi. Rana Safvi जो है वो लिखती हैं, the title of her book is The Forgotten Cities of Delhi. तो दिस इज द नेम ऑफ हर बुक, द फॉरगॉटन सिटीज ऑफ दिल्ली। उसके अंदर वो सिरी के बारे में बात करती हैं, तुगलकाबाद के बारे में ही बात करती हैं। तो अलग अलग जो दिल्ली में बहुत सारे शहर रहे उसके बारे में वो बात करती हैं। Another important book for today's class, जो आज जो भी हमने करा है या जनरली जो कोर्स में हम कर रहे हैं, उसके लिए एक और जो किताब है वो फ्रिकनबर्ग की एक बुक है, जिसका बुक का नाम है दिल्ली थ्रू द एजेस। तो बुक का नाम ही दिल्ली थ्रू द एजेस है, जो दो द लार्ज पार्ट ऑफ द बुक इज टुवर्ड्स द मॉडर्न, बट उसके अंदर पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक टाइम पे दिल्ली में क्या था, जब दिल्ली में सल्तनत एस्टैब्लिश हुआ तो वहां पर क्या क्या स्ट्रक्चर्स आए। सो इन सब के बारे में अलग अलग एडिटेड वॉल्यूम है, एडिटेड बुक है, और अलग अलग हिस्टोरियंस के इसमें जो है आर्टिकल्स हैं। और जो टॉपिक हमने आज किया है सिरी का जो टॉपिक है, और जो तुगलकाबाद का, सिरी का, और कुतुब दिल्ली का, इसके ऊपर वहाँ उसमें एम अतर अली का आर्टिकल होगा, दिल्ली इन द 13th सेंचुरी, जो है उनका एक चैप्टर है दिल्ली इन द 13th सेंचुरी के ऊपर, कि दिल्ली में कौन कौन सा स्ट्रक्चर्स जो है इस समय पे उनका कंस्ट्रक्शन हुआ। सो फ्रिकनबर्ग्स बुक दिल्ली थ्रू द एजेस, and Rana Safi's book. Also, another book, if you are looking at Delhi through the Professor Sunil Kumar's book is also very, very important. So you can look it up. ये important books हैं बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। ओके, व्हाई वाज द चोर मीनार बिल्ट? ये जो है एक हम किस चीज का बना हुआ, रूबल स्टोन का बना हुआ है, और उसको एक मोर्टर से फिक्स किया गया है, उसका रेक्टेंगुलर बेस है, ये सब आई होप आपको समझ में आ गया। इस चोर मीनार में 25 होल्स हैं, you know and not very clear about why was it constructed, but it is said that it was constructed to exhibit the heads of the thieves and the dacoits at that time. तो उस समय पर जो क्राइम है उसका रेट कम करने के लिए, और पनिशमेंट को दिखाने के लिए कि जो राजा है वो बहुत ही ज्यादा क्रूर तरीके से, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता है। सो जो जो थीव्स होते थे उनके सर काट के, ऐसा बोला जाता है कि वहां पे डिस्प्ले किए जाते थे, उस मीनार से डिस्प्ले किए जाते थे, ताकि जो आम जो लोग हैं, so that the common people, there is it instills a sense of fear in the minds of criminals and the thieves, that this is what our end is going to be if we go on these, if we do such things. I tried showing you the image, bache, but I believe that not many of you could see it. So please, निजामुद्दीन ने क्या कहा? So निजामुद्दीन, what did निजामुद्दीन say about this structure? So निजामुद्दीन जो है इसकी लोकेशन की बात करते हैं, कि कैसे ये जो सिटी है, ये शहर और किलोखरी के बीच में है ये सिटी। तो इसके बारे में बात करते हैं। वो उन्होंने कमेंट किया था, जो कि उनके एक डिसाइपल है अमीर हसन सिजजी, उन्होंने रिकॉर्ड किया। ही हैज रिकॉर्डेड द सेइंग्स ऑफ हिज मास्टर निजामुद्दीन। अमीर हसन सिजजी जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया,
और वो खुद एक आर्मी ऑफिसर थे, अमीर हसन सिज्जी, जो इसी लश्करगाह में, जो सिरी का जो लश्करगाह था वहां पर उनका घर था, अमीर हसन सिज्जी का। तो हसन सिज्जी ने रिकॉर्ड किया है कि उनके जो मास्टर हैं निजामुद्दीन, वो उन्होंने इसकी लोकेशन के बारे में बात की है कि जो सिरी है वो कहाँ है। सो जो सिरी है वो निजामुद्दीन, वो घियासपुर और और पुरानी दिल्ली के, और पुरानी दिल्ली मतलब जो कुतुब दिल्ली है उसके बीच में है। जो जो सिरी है वो शहर और नए शहर के किलोखरी के बीच में है। दिस इज व्हाट निजामुद्दीन इज सेइंग। मुझे पूरे कोर्स के लिए कोई एक बुक नहीं सफिशिएंट होगी, अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग बुक्स होती हैं। तो और पूरी पूरी बुक्स नहीं पढ़नी होती हैं, उनके कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं जिनको आपको देखना होता है। सो अदरवाइज एसयूएल का मटेरियल जो है वो काफी अच्छा मटेरियल है, उसमें काफी सारी बुक्स से बनाया गया है, उसको कंपाइल किया गया है। जिन्होंने भी वो चैप्टर्स लिखे हैं, काफी सारी किताबें पढ़ के वो चैप्टर्स लिखे हैं। सो एसयूएल मटेरियल इज वेरी गुड। अदरवाइज हर क्लास में आई ट्राई टू गिव यू the names of the books which would be relevant for that particular topic. The construction of this was from 1297 to 1307. सीरी का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1297 से 1307 तक हुआ, और इसको एज अ कैपिटल यूज किया गया 1321 तक। 1321 तक उसको एज अ कैपिटल यूज किया गया। जो विड्थ है, जो डायमीटर है, जो सरकमफ्रेंस है चार मीनार का, वो 30 स्क्वायर फीट है। उसकी जो हाइट है वो 7 फीट है। पूरे सिलेबस के लिए बच्चे, जो उपिंदर सिंह जी की किताब है, हिंदी में भी है, एंशियंट दिल्ली इज आल्सो अवेलेबल इन हिंदी, बट दैट ओनली केटर्स टू दिल्ली ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम पीरियड। जो दिल्ली का जो प्राचीन दिल्ली का जो इतिहास है, सिर्फ वही उसमें मिलेगा। पूरे सिलेबस के लिए वो किताब सफिशिएंट नहीं होगी, और ज्यादा जो है वो रीडिंग्स करनी पड़ेंगी। ओके, I believe I have answered most of the questions. There is one more question which I've missed. क्वेश्चन, अगर आप किसी का सवाल का जवाब नहीं मिला है तो एक बार फिर से पूछ लीजिए, क्योंकि काफी सारे सवाल हैं। तो अगर कोई मिस हो गया है, यू मे आस्क अगेन। अदरवाइज आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ इट, आई बिलीव।